Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to start our lecture number 8. This is class 8 in ninth. And today lecture we will study about present indefinite tense. Present indefinite tense is the very first tense out of 12 tenses. ओके सो आज की लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर के बारे में यूजेस और साथ उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों की इंग्लिश बी की बुक में पेज नंबर 74 एंड 77 तक जो एक्सरसाइज है दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Okay students, so let's start our lecture. This is present indefinite tense. We can also call it present simple tense. Page number 74. Students, in my previous lecture, I told you people that whenever you are studying any tense, so we have to study three things. The first one, that is the Urdu identification. The second one, the uses of that tense, and the third one, the sentence structure. अभी उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो आप लोगों को पता है कि उर्दू इस टेंस की उर्दू सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। नाउ व्हाट अबाउट यूजेस? यूजेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल यूजेस मीन व्हेन वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर tense. For example, when we are speaking, when we are writing English in our daily life, in our daily conversation, when we do communicate on daily basis, so when we have to use present simple yani present indefinite tense. So the very first, when we are talking about habitual action means those action which are taking place daily routines. For that we have to use present simple tense. For example, when you say that he gets up early in the morning, so this is a kind of activities which is taking place on daily basis. Okay, so जो हम रोज़ाना के बुनियाद पर जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, फॉर देट वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। द सेकंड वन दैट इज़ शेड्यूल्ड एक्शंस। शेड्यूल्ड एक्शंस का मतलब स्टूडेंट्स ये हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्शन विच आर ऑलरेडी प्लान्ड। फॉर एग्जांपल कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ काम होते हैं या कोई हमारे प्लानिंग्स होते हैं जो हम ऑलरेडी प्लान करते हैं या हम उसको ऑलरेडी हम शेड्यूल बनाते हैं, डेट या टाइम फिक्स करते हैं। सो फॉर सच एक्टिविटीज यू यूज़ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क का फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विजिट अमेरिका, अभी उसकी जो विजिट है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, यानी तक आप बस सपोज टुडेज 9 दिसंबर और 15 को अमेरिका जा रहे हैं, so his visit is already planned, scheduled, so we can say that the prime minister leaves for USA on 15 December, so we can use present indefinite tense instead of future indefinite tense. हम ये नहीं कह सकते कि he will leave, the prime minister will leave, हम कहते prime minister leaves for America on 15 December. या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एग्जांपल को देख ले, our final exam starts in March. So now this is planned that your final term exam is going to be started on in March. So this is a kind of planned schedule actions. The third one, that is universal truth. Universal truth mean universal facts. Universal facts का मतलब ये है, for example, when you say that sun rises in the east, so everyone accept this. This is a universal truth. हर किसी को पता है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। या फॉर एग्जांपल द सन सेट्स इन द वेस्ट, यार द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो दीज आर universal truths, universal facts. So students, these were all about the uses of present indefinite tense. We use present indefinite tense for habitual action. Second one we use for planned or scheduled action, and the third one we use for universal truths or facts. Now what about the sentence structure of this tense?
सेंटेंस स्ट्रक्चर द फर्स्ट वन। आप लोगों को पता है ना कि जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सो वी study the structure of three types of sentence. One is assertive, the second one that is negative, and the third one that is interrogative. So what about the assertive sentence of present and definite tense? Students, आप लोगों ने गौर से सुनिए। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इधर अगर आप लोग देख ले ब्रैकेट में, तो साथ मैंने एस और ई एस लिखा है। नाउ व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट्स याद रखें, थोड़ा आप लोग तवज्जो के साथ सुने कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन के। देट आई, वी, यू, he, she, it, and they, these are called personal pronoun. Now these personal pronoun are divided in three categories. The way I and we is called first person pronoun, you is called second person pronoun, and he, she, it or they are called थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसमें अगर आप लोग देख ले तो ही, शी, इट और दे, ये दीज आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बट ही, शी, इट दैट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, and they that is plural third person pronoun. So जब हमारे पास एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन ही, शी, इट, he, she, it is called singular third person pronoun. So when the subject of a sentence is singular third person pronoun or singular subject, so we have to add s or es with the first form of the verb, with the first form of the verb. जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई नेम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोनाउन के अलावा बॉय, गर्ल, चाइल्ड, मैन, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ही गोज टू कॉलेज डेली, सो नाउ ही इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। या शी सिंग्स अ सॉन्ग, ओके, इट रेन्स इन विंटर, सो या द बॉय plays in the garden. So we have to use s or es with the first form of the verb when the subject is singular third person pronoun. और बाकी प्रोनाउन के साथ लाइक आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम दे यूज़ नहीं करते। ओके, सो ही गोज़ टू कॉलेज डेली, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। नसीमा, नसीमा देखे दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो नसीमा ऑलवेज स्पीक्स देखें ना, स्पीक के साथ एस आया। द ट्रूथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आप लोगों ने इंग्लिश ए में पढ़ा होगा। द मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आप लोगों ने ये करना है पेज नंबर 74 इंग्लिश बी बुक। आप लोग अपनी बुक्स खोल ले तो वहाँ कुछ उर्दू सेंटेंसेस है, तकरीबन टोटल 15 सेंटेंसेस है, तो आप लोग बैठ के इसको ट्रांसलेट करें। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ गीदड़ शाम को चीखते हैं। सो द जेकाल्स हॉल इन द इवनिंग, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। सो वी रीड अ न्यूज़पेपर डेली। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। सो असलम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, असलम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखें ना, बाई के साथ क्या है, असलम बाइज न्यू शूज़ ऑन ईद। ओके, असलम बाइज, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। ओके, सो अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये दिस इज़ अ वेरी फेमस सेंटेंस, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जितने भी टोटल 15 सेंटेंसेस हैं ये आप लोग ट्रांसलेट करें। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंस we have to use do not and does not as a helping verb. Do not and does not, आपने do not and does not यूज़ करनी है when we are making negative sentence। अभी इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह मैंने पहले बताया, जब when the subject is singular third person pronoun he, she, it और singular subject, तो आप लोगों ने does not
यूज़ करनी है। बट इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल बॉयज़, चिल्ड्रन, dogs, cats, plural हो, so then we have to use do not, okay. So students, when we have to use do not and we have to use does not, when the subject is singular third person pronoun or singular subject, then we have to use does not, okay. And when the subject is plural subject or I, we, you, they, then we have to use do not. Now students, एक और बात, जब आप डज नॉट आप लोग यूज़ करें एक सेंटेंस में, तो उसके बाद आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस पर नहीं डालनी है, ओके। सो एग्जांपल, आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग, शी डज नॉट सिंग शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, या दे डू नॉट go to school, या Ahmad does not tell a lie. So these are a kind of negative sentences. इसके अलावा आप लोगों ने डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट में कंफ्यूज नहीं होना है। डिड नॉट हम यूज़ करते पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। सो डू नॉट एंड डज नॉट वी यूज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोग अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 76, so there are negative sentences. आप आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, सो यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। गलती तस्लीम करने को हम क्या कहते हैं, एडमिट। यू डेन आप बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखो पेपर में एडमिट की जगह एक्सेप्ट लिखते हैं। सो डू नॉट राइट एक्सेप्ट, दिस इज एडमिट। गलती तस्लीम करने को क्या कहते हैं, एडमिट। हम कहते हैं ना मैं एडमिट कर लेता हूँ, या मैं आई एडमिट इट माई मिस्टेक। सो यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, सो ही डज नॉट रिपेंट ऑफ सिन या ऑन सिन, ओके। सिन मीन गुनाह, रिपेंट मीन पछताना, ओके। ही के साथ क्या है, ही डज नॉट। आपने उर्दू सेंटेंसेस में देखनी है। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती है, सो अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स, ओके। सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, सो स्टार्स डू नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे टाइम। सो बाकी जितने भी सेंटेंसेस आप लोग नीचे सेंटेंस नंबर 12, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो वुड डज नॉट सिंक इन द वाटर। अभी इसमें ये है कि एक हमारे पास सिंक है और एक हमारे पास ड्राउन है। सो सिंक कहते हैं बेजान चीज़ डूबने को हम सिंक कहते हैं, और ड्राउन जानदार चीज़ डूबने को हम ड्राउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब आप लकड़ी मीन वुड, सो वुड इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी हैव टू यूज सिंक। द वुड डज नॉट ड्राउन, नहीं, द वुड डज नॉट sink in the water, okay. So be careful about this thing, okay. So now next, that is about interrogative sentence. Interrogative sentence means सवालिया जुमले। अब स्टूडेंट सवालिया, हाउ टू मेक इंट्रागेटिव सेंटेंस, इट्स वेरी इजी, ओके। आप लोगों ने इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये करना है, जो आपके पास डू और डज था वो आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस की स्टार्ट में आप लोगों ने पुट करनी है, और लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क डालनी है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि सेंटेंस में हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। सो डू और डज आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले पुट करनी है, ओके। और लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क डालनी है। फॉर एग्जांपल, डज शी लाइक म्यूज़िक, डज शी लाइक म्यूज़िक। अभी आप लोगों को पता है कि डज किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा। डू दे स्टडी दियर बुक्स, या डू यू टेक पार्ट इन स्पीच कंपटीशन। सो दीज आर अ काइंड ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आप लोग पेज नंबर 76 देख ले, तो हाँ वह भी 15 सेंटेंसेस हैं इंट्रागेटिव के। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, सेंटेंस नंबर 1। सो वेयर डू द चिल्ड्रन, वेयर, नाउ चिल्ड्रन इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, सो वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मीन आंख मचोली।
ओके, डाकिया इस गली में कब आता है? सो व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट? ओके, सेंटेंस नंबर 13, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? सो वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम? Okay, so these are all about interrogative sentences. There are 15 sentences, so try to translate these sentences. इस तरह अगर नीचे पेज नंबर 76 पे आप लोग एक्सरसाइज में देख लें, तो जो पेज नंबर सेंटेंस नंबर है 12, क्या वो अपनी गलती मानता है? सो डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? ये सेंटेंस हमने पहले भी यूज़ किया, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4, क्या बादल ज़ोर से गरजता है? एक्सरसाइज पेज नंबर 76। सो डज द क्लाउड थंडर लाउडली? ओके, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? सो वाई डज इट हल इन समर? Okay, so students, it was all about interrogative sentence. How to make negative sentence interrogative in simple sentence. तो सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में वी यूज डू नॉट इन डज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। और इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब से पहले सॉरी सब्जेक्ट से पहले डू और डज को पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप लोग ऐसा करें कि पेज नंबर 74 से लेकर 77 तक जितने भी 2-3 एक्सरसाइज है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, तो आप लोग बैठ के इसको ट्रांसलेट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग टेंस की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि टेंस के प्रैक्टिस के बगैर आप लोग इट वुड बी वेरी difficult and impossible for you to without practice to study tenses. So you need a lot of practice. The more you practice, the more you understand these things easily. Students, in today's lecture we came to know about present simple tense. Now what you have to do practice a present and definite tense. Translate exercise on page number 74, 75, 76 and 77 English B book, and write down in your notebooks. Inshallah, in our previous lecture we will study about other tense. Okay, so thanks for your watching, and inshallah see you in next lecture. Students, before leaving this session, I would like to clear one thing, that you know that your weekly test it is going to be conducted on Friday, on Saturday or Friday, so be prepared for that. आप लोगों का इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वीकली बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, टेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है, वॉइसेस की भी करनी है। इसके अलावा जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, सारे जितने भी टाइप्स है आप लोग ये रिवाइज करें दोबारा। स्पेशली जो एडवर्ब अभी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 6 आप लोग देख ले। So be prepared for that. Okay, don't waste your time. Make the best use of your time. Allah Hafiz.